या सो हाय ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग माय लास्ट वीडियो। एंड इस वीडियो में हम रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं। तो गाइस मैं एक फुल प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें मल्टीपल्स क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बिगनर लेवल के क्वेश्चन आंसर कवर करने वाला हूँ और डिफरेंट वीडियोस मैं इसमें बनाने वाला हूँ। ओके, सो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं। और पहले मैं बेसिक लेवल कवर करने वाला हूँ, फिर मीडियम एंड देन फिर एडवांस लेवल कवर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एंड गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिएक्ट। ओके, तो एक्चुअली दीज आर अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, so maybe some interviewer can ask. So first question is what is React? So React is an open source JavaScript library. So it's a JavaScript library, and which help us to make the web application. And it's just they just provide the UI layer. If you go with the MVC model view controller, then only the view part is provided by the React. And for the backend, like mostly what we do is we use the we have separate team which write the API for us, and just we are making the API calls. Okay, it supports server side and client side rendering. So now after latest updates, now the React can also support the server side, but in the starting it was only supporting the client side rendering. And we can easily create a custom components or use at multiple places. So we can very easily create a custom components or use at multiple places. Suppose you want one button to show at multiple places. Okay, so what you can do is you can create one custom button and you can provide their design, and on that basis just you can, like, you have to place 10 places, so you can easily place that button. You can also provide the prop states. State is like the component level things. Okay, React also streamline how data is stored and handle using state and props. So what I told you, so props is like a function parameter which we are passing. A state is like a local variable which cannot expose by outside, and तो उसमें हम अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, बट प्रॉप्स कैन नॉट बी चेंज इन द कॉम्पोनेंट्स। बट ओके, सो प्रॉप्स एज ए, जैसे आप एज्यूम करो एक फंक्शन है, फंक्शन का हम जब पैरामीटर पास करते हैं वो एक प्रॉप्स हो गया। स्टेट इज लोकल वेरिएबल, डिक्लेयर्ड वेरिएबल वी कैन। ओके, so the understanding part is it's a UI layer and which help us to make the web application. होप इट्स क्लियर। एंड गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड यू कैन आल्सो कमेंट ऑन द वीडियो। So now moving on to the second question is what is JSX? So JSX stand for JavaScript XML. So it is a very simple, like simply a syntax extension of the JavaScript. It allows us to directly write HTML in React. So within JavaScript code. So what you can do is you can write the JavaScript plus React in one file. Okay, so you can write the expression, you can write if else. So that's the power, means you can write, you can write HTML with JavaScript in one file. And then after that they can just with the help of Babel they can translate into the another file. So JSX produce React elements. So React elements, okay, so it's a small level of components. So we will see further what is React elements and all. Okay, after compilation JSX is always going to get compiled to React dot create element via Babel. Okay, so what is that mean is कि जैसे ही हम JSX में कोई भी एलिमेंट्स लिखते हैं, कोई भी कंपोनेंट्स लिखते हैं, वो इन द एंड क्या होता है, वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स के थ्रू। ओके, और बेबल के थ्रू हम उसको ट्रांसपाइल करते हैं। तो लेट्स टेक एग्जांपल, आई हैव नोटेड डाउन वन बेबल लिंक। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ओके, ये देखते हैं। मैंने क्या किया, बेबल का एक लिंक मैंने क्या किया ना, जो भी मैं एज ए रेफरेंस यूज करता हूँ ना चीज़ें, लाइक ये क्वेश्चन के लिए मैंने जो भी रेफरेंस किया मैंने यहाँ पर इन द
एंड के में जैसे आप JSX के बारे में और स्टडी करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आके चेक कर सकते हो। और मैं सेम सेम जो ये फाइल है रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर .ts ये मैं पूरा गिटहब पे डाल दूंगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, लाइक हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। ओके, फंक्शन में जो लाइक एक ऐड कंपोनेंट, यहाँ ये ले लो आप, एक कंपोनेंट है यूज़र, वो 2 प्रॉप्स लेता है, नेम एंड ऐड ऐड फ्रेंड, एंड ये रिटर्न कर रहा है। ओके, ये इनसाइड वन मोर कंपोनेंट हो गया। सो आफ्टर कंपाइलेशन, ओके, तो कंपाइल होके कैसे बनता है, लाइक फंक्शन यूज़र नेम ऐड और ये उसका रिटर्न है। सो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के थ्रू पहले क्या होगा, डिव बनेगा, फिर नल, एंड रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स के थ्रू पैरामीटर ये p टैग बनेगा, एंड फिर नल नेम, एंड देन फिर अगेन रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ये हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। ओके, तो जैसे अभी इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, नेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। जैसे अब क्रिएट डॉट रेट एलिमेंट यूज़र एक कंपोनेंट हो गया, एंड प्रॉपर्टी क्या है, नेम एंड ऐड कंपोनेंट द प्रॉपर्टी। सो इन द एंड आप देख रहे हो क्रिएट एलिमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, रिएक्ट के आफ्टर ये हम बेबल का यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में भी विद द हेल्प ऑफ वेबपैक, एंड फिर वो क्या करते हैं, क्रिएट डॉट रिएक्ट एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है उस फाइल्स को। ओके, तो ऑन दैट फिर रिमिक्स सॉरी रिएक्ट फिर they have their own logic, and then it will update in the actual DOM. I hope आप able to understand this. And next one is what is the difference between element and component. Okay, अब हमने देखा अब एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ओके, तो फर्स्टली हम देखते हैं एलिमेंट क्या होते हैं। सो एलिमेंट इज अ रिएक्ट एलिमेंट इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डोम नोड। सो रिएक्ट एलिमेंट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है डोम नोड का। ओके, रिएक्ट एलिमेंट इजंट एक्चुअली द थिंग यू विल सी ऑन द स्क्रीन, इंस्टेड इट इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो क्या है, रिएक्ट एलिमेंट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे कोई भी एक एलिमेंट, जैसे एक हमारा डिव टैग हो गया, फिर हमने कोई कस्टम क्रिएट किया। ओके, तो देयर आर फ्यू रीजन फॉर दिस, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर लाइट वेट। सो रिएक्ट एलिमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है एक डोम नोड का। ओके, एंड ये ऑब्जेक्ट क्या मीन्स, इसका क्या यूज करते हैं, क्योंकि लाइट वेट होता है और कंपैरिजन में यूज होता है। ओके, रिएक्ट क्रिएट्स एलिमेंट एंड डिस्ट्रॉय दिस एलिमेंट विदाउट टू मच ओवरहेड। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ, लाइक रिएक्ट जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको ईजी होता है कंपेयर करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, लाइक डिलीट करना, क्रिएट करना बहुत ईजी होता है, तो इसलिए वो इसका यूज करते हैं। रिएक्ट कैन ईजिली कंपेयर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड सी व्हाट्स चेंज्ड। React can update the actual DOM only when when the changes occurred. So suppose आपके पास एक कंपोनेंट है, ओके, बटन कंपोनेंट, अगर आप उस बटन में कुछ चेंजेस करोगे तब भी रिएक्ट उसको एक्चुअल डोम में अपडेट करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा। ओके, वर्चुअल डोम का वो यूज करते हैं, अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वर्चुअल डोम की। तो वर्चुअल डोम में क्या होगा, कंपैरिजन करेगा पहले प्रीवियस ऑब्जेक्ट को वर्चुअल डोम के साथ, अगर वो उसमें कुछ डिफरेंस है तभी वो एक्चुअल डोम में अपडेट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। इट विल हेल्प्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस बिकॉज वी ओनली चेंज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो टू क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट वी कैन यूज द क्रिएट एलिमेंट मेथड्स। तो सपोज लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ दिस। तो लाइक एक एलिमेंट कैसे, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट को मैंने आपको बताया, डिव बनाया, आईडी होगी एंड लॉगिन उसकी वैल्यू होगी। तो इट टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट, जो क्रिएट एलिमेंट है ना 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फर्स्ट वन टैग नेम, सो दिस इज अ टैग नेम लाइक डिव यूजर वट एवर आई शो यू, दिस इज द एट्रीब्यूट्स ऑन दैट टैग। ओके, वट आर द एट्रीब्यूट्स लाइक आईडी लॉगिन, जैसे ये हो गया, एंड द कंटेंट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द एलिमेंट, जैसे ये कंटेंट हो गया लाइक लॉगिन, जो भी आपको टेक्स्ट शो करना है, या फिर आपका कोई कंपोनेंट भी हो सकता है इसके प्लेस पे। ओके, तो क्रिएट एलिमेंट 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, टैग नेम, एट्रीब्यूट्स एंड द कंटेंट, चिल्ड्रन वी कैन, एंड क्रिएट एंड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट दैट लुक्स लाइक। तो वो क्या करता है ना, वो ऐसा ऑब्जेक्ट, जो क्रिएट एलिमेंट है ना, ये ऐसा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो फिर वो क्या करते हैं ना, रिएक्ट क्या करता है ना, फिर उनका जो डिफ एक एल्गोरिदम है उसके बिहाफ पे क्या करता है, जैसे सपोज आपने नेक्स्ट लेवल पे जाके आपने ओके, सो अगर हम देखो हम क्या करते हैं ना, वेन एवर वी रेंडर दिस यूजिंग रेंडर इन द डोम इट लुक्स लाइक दिस। ओके, हम क्या करते हैं, हम ऐसे अपने कंपोनेंट में लिखते हैं, राइट।
तो फिर क्या करता है वो क्रिएट एलिमेंट वेरिएबल के थ्रू हम इसमें क्रिएट एलिमेंट के थ्रू इसमें कन्वर्ट कर देता है और वो रिटर्न में ये हमको ये दे देता है। तो इससे क्या हेल्प होती है ना, तो रिएक्ट जब हम मीन्स प्रीवियस के साथ न्यू चेंजेस को कंपेयर करता है, मीन्स एक प्लेन जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट हो गया जिसको कंपैरिजन करने में बहुत ईजी होता है। अगर उसको कुछ चेंजेस मिलते हैं तो एक्चुअल डोम में अपडेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। दैट्स वाई दे आर यूजिंग दिस थिंग। Components is like a component is a function or call class which optionally accept input and return. Component is like मेन component हो गया, ओके, जो फंक्शन होता है या फिर फंक्शन और क्लास जो इनपुट और रिटर्न करेगा एक रिएक्ट एलिमेंट को, जो फाइनली एक रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करता है। जैसे बटन हो गया, ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है ऑन लॉगिन, और इन द एंड वो क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक डिव, ओके, एक डिव रिटर्न कर रहा है बटन, और इसमें एक प्रॉप्स ऑन क्लिक पास कर रहा है। तो द जेएसएस गेट कंपाइल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट समथिंग लाइक दिस। तो वो ऐसे कन्वर्ट कर दे, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, ये बटन बना, ये मैंने वहाँ पर शो किया आपको। और उसके बाद बेबल के थ्रू हम कैसे इसको कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, ये एक्सेप्ट करेगा जैसे ऐड फंक्शन और रिटर्न कर देगा क्रिएट डॉट एलिमेंट बटन एंड देन ऑन क्लिक एंड ऐड फ्रेंड। लाइक अगर आपको यहाँ पर कोई टेक्स्ट है वो भी टेक्स्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा, तो ऐसे वो कन्वर्ट कर देता है। रेफरेंस के लिए अगर आपको और भी डिफरेंस देखना है तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट कॉम्पोनेंट इन रिएक्ट। okay, so there are two way to create a component in React. Is first one is function component, second one is the class component. तो function component में very simple है कि like function name and parameter if you want to see want to pass and जैसे यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हो। क्लास कंपोनेंट में अगेन क्लास नेम एक्सटेंड रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और आपको रेंडर फंक्शन लिखना होता है जो रिटर्न करेगा JSX, जो भी आपकी JSX है, मीन जो भी आपकी HTML CSS। ओके, बट आफ्टर 16.8 रिएक्ट वर्जन क्या हो गया, it is always recommended to use the function component because you can use the hooks. Okay, so that's why they recommend always to use the function component after 16.8. So moving on to the next one is the what is state in React. State क्या होती है React में? Okay? अभी हमने देखा कि React क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट नाम देखे हम। स्टेट क्या होती है कंपोनेंट की? स्टेट इज अ प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे एक हमारा प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो दैट होल्ड सम इन्फॉर्मेशन, लाइक एक नेम हो गया। स्टेट एक नेम हो सकता है जो कि होल्ड करता है कुछ इन्फॉर्मेशन, लाइक यूजर नेम वो होल्ड करेगा, डेट में चेंज ओवर द लाइफ टाइम, और वो चेंज हो सकता है, लाइक वो एक कंपोनेंट लेवल पे होता है स्टेट, जो कि चेंज हो सकती है। लाइक आपने काउंट ले लिया, काउंट को आप इंक्री 1 2 3 4 कर सकते हो, आप डाउन भी कर सकते हो 1 2 -1 माइनस, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं आपके। तो इट इज मैनेज इन द कंपोनेंट जस्ट लाइक एनी वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ये जो कंपोनेंट होता है, जो लाइक जो स्टेट होती है मैनेज की जाती है कंपोनेंट के अंदर। जैसे कि आपने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वो उस कंपोनेंट की मीन्स उस फंक्शन की एक वेरिएबल वैल्यू होगी ना, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। सेम लाइक दिस हेयर, स्टेट भी एक कंपोनेंट की क्या होती है, लाइक एक ऑब्जेक्ट होता है जो होल्ड करता है इन्फॉर्मेशन। स्टेट चेंजेस द कंपोनेंट रिस्पॉन्ड बाय री-रेंडरिंग। जैसे ही आपने स्टेट चेंज की तो कंपोनेंट कैसे रिस्पॉन्स देगा, वो री-रेंडर कर देगा खुद को, या फिर उसके अंदर कोई चाइल्ड होंगे वो भी री-रेंडर हो जाएंगे। तो डेट्स द पावर ऑफ स्टेट। कि स्टेट में क्या होता है, जैसे जैसे समझो कि आप एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है, ये ओनली कंपोनेंट लेवल पे होता है। ओके, ओनली जिस कंपोनेंट में हमने डिक्लेयर किया वही कंपोनेंट इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। और जैसे ही कंपोनेंट लाइक स्टेट चेंज होगी, साथ के साथ कंपोनेंट री-रेंडर हो जाए। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ये स्टेट होगी एक काउंट, और हम यूज स्टेट लाइक एक हुक है, कस्टम हुक, ये लाइक ये प्रॉप्स होगा इस कंपोनेंट का, और ये इनिशियल वैल्यू जो भी हम इसको पास कर सकते हैं, और ये काउंट एंड सेट काउंट। ओके, सो ये रिटर्न हो गया। रिटर्न में जैसे हमने क्या किया, काउंट को शो कर दिया, और अगर आप इस काउंट को बढ़ा भी सकते हो, लाइक इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, या फिर लाइक +1 -1 मीन्स आप काउंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो और रीसेट भी कर सकते हो, मीन्स वट एवर यू वॉन्ट, इट्स अप टू यू। एंड
फिर आप देख रहे हो जैसे कि हम स्टेट को अपडेट कैसे कर रहे हैं, हम सेकंड मेथड से सेट काउंट से, और जैसे ही काउंट को लाइक काउंट की लाइक हमने स्टेट अपडेट की ना, ये कंपोनेंट क्या होगा, री रेंडर हो जाएगा। तो ऐसे वो कंपोनेंट रिस्पॉन्ड देता है कि भाई मैं स्टेट चेंज हुई है तो मैं खुद से चेंज कर लूँगा, री रेंडर करूँगा। दैट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द रिएक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन वी विल सी, हमने स्टेट देख लिया, अब हम देखेंगे प्रॉप्स क्या होता है, व्हाट इज प्रॉप्स इन रिएक्ट। ओके, सो रिएक्ट में प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स आर इनपुट टू कंपोनेंट्स, ओके, सिमिलर टू फंक्शन पैरामीटर आई टोल्ड यू। तो प्रॉप्स कैन बी सिंगल वैल्यू और ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ए सेट ऑफ वैल्यू दैट आर पास्ड टू द कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट में प्रॉप्स क्या होते हैं कि जो हम पास करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड, और ये एक फंक्शन लाइक एक ये वैल्यू हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक फंक्शन हो सकता है, एनीथिंग वट एवर यू वांट टू पास फ्रॉम प्रॉप्स लाइक पेरेंट टू चाइल्ड, तो हम प्रॉप्स का यूज करते हैं। और प्रॉप्स को कंपोनेंट के अंदर हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ लाइक हम जो रीड ओनली होता है प्रॉप्स कंपोनेंट के अंदर। और मैंने इस पर फुल फ्लैश वीडियो भी बना रखी है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो प्रॉप्स आर पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, मैंने बोल दिया। प्रॉप्स होल्ड सम इन्फॉर्मेशन, व्हेन एवर द प्रॉप्स चेंज द कंपोनेंट रिस्पॉन्ड बाय री रेंडरिंग, सेम लाइक अ स्टेट। स्टेट कंपोनेंट लेवल पे होती है, प्रॉप्स पेरेंट टू चाइल्ड आती है। हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, प्रॉप्स को चेंज नहीं कर सकते। और जब भी जैसे ही प्रॉप्स चेंज होती है तो अगेन कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो जैसे एक वेलकम कंपोनेंट हुआ, ये प्रॉप्स एक्सेप्ट कर रहा है फंक्शन कंपोनेंट में, तो प्रॉप्स डॉट जैसे नेम हमने पास किया, तो क्लास कंपोनेंट में सेम रहेगा जैसे वेलकम। जस्ट यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम से हम एक्सेस करते हैं प्रॉप्स को, और यहाँ पर प्रॉप्स डॉट नेम से लाइक प्रॉप्स डॉट से। एंड कैसे को हम कैसे पास कर सकते हैं, लाइक हमने नेम कंपोनेंट कॉल किया और उसमें नेम नेम जैसे हमने यहाँ पर नेम है प्रॉप्स, तो आप यहाँ पर नेम पास कर सकते हैं। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रॉप्स। सो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, स्टेट एंड प्रॉप्स आर अगेन बोथ आर द जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, बोथ होल्ड्स द इंफॉर्मेशन, बोथ प्रॉप्स एंड स्टेट trigger re-render whenever the updates. Props get passed to the component, same like a function parameter. Component cannot be changed its props, and state is managed within a component, same like a variable declared within a function. Component can change its state. Okay, just one difference but I feel is कि हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं कंपोनेंट में, प्रॉप्स को नहीं कर सकते, रीड ओनली होती है प्रॉप्स। एंड जैसे ही बोथ चेंज होंगे तो री-रेंडर करेगा कंपोनेंट। नाउ व्हाट आर इनलाइन कंडीशनल एक्सप्रेशन। ओके, सो इनलाइन कंडीशनल एक्सप्रेशन का मीनिंग हो गया, जैसे पैरेंथेसिस के हम लिखते हैं और उसमें लाइक हम कंडीशनल लगा सकते हैं, लाइक इट्स इफ एल्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, लाइक इज फैचिंग हो रहा है तो आप स्पिनर दिखा देते हो, इज फैचिंग है तो ये ऑप्शनल हो गए, लाइक अगर इज फैचिंग ट्रू है तो ये स्पिनर होएगा, अदरवाइज ये दूसरा कंपोनेंट लाइक इफ एंड एल्स वाला फंडा हो गया। ओके, अगर आपको कोई वैल्यू दिखानी है कंपोनेंट में लाइक रेंडर के टाइम पे, तो आप एक्सप्रेशन का यूज करो। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज की प्रॉप्स एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इट इन एरे ऑफ एलिमेंट्स। तो की प्रॉप क्या होती है, जब हम ना कंपोनेंट को एरे ऑफ एलिमेंट्स को रेंडर करते हैं ना, तो हमको की प्रॉप देनी होती है। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस एंड व्हाई वी शुड यूज इट। तो a key is a special string attribute we should include when creating array of elements. तो हमको इंक्लूड करना होता है उसको, ये रिएक्ट की गाइडलाइन है। और रिएक्ट क्या यूज करता है वो देखते हैं अब हम। की प्रॉप्स हेल्प रिएक्ट आइडेंटिफाई विच आइटम है चेंज, एडेड एंड रिमूव्ड। तो रिएक्ट क्या करता है ना, रिएक्ट एक जैसे आपने एक एरे ऑफ आपके ब्लॉग्स हैं सपोज, ओके 10 ब्लॉग्स हैं आपको रेंडर करने हैं, तो आप क्या करोगे, एरे हो गया आपका वो, तो एरे में क्या करेंगे हम, जैसे हम री रेंडर करेंगे ना तो हमको की प्रोप देना होता है। तो की प्रोप में क्या होता है ना, रिएक्ट को अंडरस्टैंड होता है ओके इस एरे में जैसे हमारे 10 है, तो उसमें अगर हमने कोई चेंज किया, कोई हमने आईडी चेंज हुई, कोई नेम चेंज हो, कोई टाइटल चेंज हो, तो रिएक्ट को ये पता लग जाए ओके ये आईडी पे ये वैल्यू चेंज हुई है, तो विच हेल्प्स द आईडी आइटम हैव चेंज, एडिड और रिमूव। लाइक 10 थे, अब री रेंडर पे वो 9 रह गए, री रेंडर पे 11 हो गए। तो रिएक्ट उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि रिएक्ट क्यों किसके लिए यूज करता है, वो
कंपैरिजन करता है ना जब वो प्रीवियस और न्यू में, लाइक फॉर वर्चुअल डोम, डिफ डिफ जो उनका वो है एल्गोरिदम, जिससे कि लाइक यूआई पे एक्चुअल डोम में वही वही वो परफॉर्म लाइक चेंजेस करते हैं जो एक्चुअल में चेंजेस हुए हैं। अगर वो अपडेट ही नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स के लिए सब चीज़ें यूज होती है। रिएक्ट शो वार्निंग मैसेज इन द कंसोल इफ यू डोंट ऐड की वैल्यू इन प्रेजेंट इन द एरे ऑफ लिस्ट। लाइक अगर आपने की नहीं दिया तो रिएक्ट क्या करता है, कंसोल पे वार्निंग मैसेज आपको शो कर देता है। तो जैसे आपका टू डू है, लाइक आपको टू डूस हैं आपके मैप में, तो आपको की लाइक आप आईडी एज ए आईडी पास कर सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज हाउ टू क्रिएट रेफ्स एंड यूज ऑफ रेफ्स। तो रेफ क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं ओके रिएक्ट में। सो रिएक्ट रेफ यू हेल्प अस टू मैनेज द रेफरेंस ऑफ ए डोम एलिमेंट। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी हमको क्या होता है, जो डोम नोड होती है ना, लाइक हमारा डिव हो गया या फिर कस्टम एलिमेंट्स हो गए, उनका हमको रेफरेंस चाहिए होता है। लाइक हम उसको, जैसे इनपुट बॉक्स हो गया, इनपुट बॉक्स से हमको वैल्यू गेट करनी है, या फिर हमको फोकस लेके आना है, जैसे बटन क्लिक पे हमको इनपुट बॉक्स में फोकस लेके आना है, या फिर हमारे मीडिया हो गया, मीडिया पे लाइक हम क्लिक पे लाइक हमको प्ले करना है, नेक्स्ट करना है, प्रीवियस करना है, तो हमको रेफरेंस लगते हैं। फिर कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं, उनको डोम नोड का रेफरेंस चाहिए होता है ओके, फुल डोम नोड का, फॉर एनिमेशन के लिए, फॉर मैप्स, जैसे मैप एप्लीकेशन होती हैं, लाइक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है एनिमेशन के लिए, ये सब चीज़ें लगती हैं ओके। तो उसके लिए हम रेफ का यूज़ करते हैं ओके, रेफरेंस का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है, हमको जो डोम का जो नोड है ना, एलिमेंट है, उसका पूरा हमको कंट्रोल दे देता है। तो उस पर हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसमें लाइक कोई क्लास नेम ऐड करने है, कोई टेक्स्ट चेंज करना है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। दिस गिव्स अस द एबिलिटी टू मॉडिफाई चेंज द एलिमेंट और इंस्टांस ऑफ द कंपोनेंट। वी कैन एक्सेस एलिमेंट कंपोनेंट विदाउट द स्टेट और अपडेट रीरेंडर। जैसे आप चेंज करोगे ना तो रीरेंडर नहीं होगा या फिर कोई स्टेट चेंज नहीं होगी ओके। एज पर द लाइक रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन वी शुड यूज फॉर थ्री थिंग्स: मैनेज, फोकस, टेक्स्ट सिलेक्शन, मीडिया। जो मैंने आपको बोला था ना, लाइक इनपुट बॉक्स उससे वैल्यू गेट करनी है हमको, उसमें एलिमेंट पे फोकस लाना है इनपुट बॉक्स के लिए, मीडिया एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट वन द इम्पेरेटिव एनिमेशन। इम्पेरेटिव एनिमेशंस का मीनिंग होगा कि लाइक कुछ रिस्पॉन्सिबल डोम नोड टू मैनिपुलेट द टारगेट एलिमेंट। जैसे एनिमेशंस के लिए ना कुछ टारगेट एलिमेंट्स आपको उस पर कुछ एनिमेट करना है, जैसे एक बटन क्लिक पे कुछ परफॉर्म करनी है, तो तब हमको लाइक एनिमेशन के टाइम पे हमको डोव का रेफरेंस चाहिए होता है। थर्ड वन इज द इंटीग्रेटिव में थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। जैसे हमको एडिटर, मैप, इमेज मैनिपुलेशन टूल्स के लिए हमको वो लाइब्रेरीज होती हैं, उनको हमको डोम का एक्सेस देना होता है। तो तब हमको तब ये रेफ हम क्रिएट करते हैं। कैसे करें सर? बहुत ईजी है। यूज रेफ, हमको एक हुक मिल गई है, उसको क्रिएट करो, इनपुट एलिमेंट आ गया, एंड बस रेफ इक्वल टू वो इनपुट दे दो। और लाइक जब आप चेंज कर रहे हो तो इनपुट डॉट करंट डॉट फोकस से आप जैसे फोकस इनपुट पे ला सकते। अगेन मैंने इसके लिए भी यूट्यूब वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉरवर्ड रेफ्स। सो फॉरवर्ड रेफ्स, अगेन फॉरवर्ड हेल्प अस टू पास रेफ्स थ्रू अ कंपोनेंट टू वन ऑफ इट्स चिल्ड्रन। तो आप क्या कर सकते हो ना, जो पेरेंट से आप चाइल्ड पे रेफरेंस पास कर सकते हो। हम इसको ना एग्जांपल के थ्रू इजीली समझ आएगा आपको। जैसे एक फैंसी बटन हो गया, ठीक है, आपने क्रिएट किया, फॉरवर्ड रेफ्स के थ्रू हम पास कर सकते हैं। रेफ हमने ये पास किया और ये बटन को हमने रेफरेंस एक्सेस कर दिया, तो इस बटन का जो ये बटन का कंट्रोल है ना, हम पेरेंट्स को दे देते हैं। तो जब हम फैंसी कंपोनेंट है ना, फैंसी कंपोनेंट को आप ये रेफ पास करोगे, ये रेफ जो हमने क्रिएट किया, तो हम जहाँ पर भी ये फैंसी बटन यूज़ करेंगे ना, उसके पेरेंट पे उस इस बटन का कंट्रोल आ गया। तो आप उस पर कोई क्लास नेम ऐड कर सकते हो, कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ये आप कुछ भी कर सकते हो। कंपोनेंट यूजिंग फैंसी कैन गेट अ रेफ टू द डोम बटन नोम एंड एक्सेस इफ इट्स नेसेसरी। जैसे आपको कुछ चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्चुअल डोम एंड हाउ इट वर्क। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं डोम क्या होता है ओके। तो डोम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मीन्स एक structural represent the tree structure representation of HTML element that are present in the web apps. So
जैसे हमारे जो वेब ऐप्स जो हम बनाते हैं ना, वो इसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट होता है, ओके, लाइक ट्री स्ट्रक्चर, पेरेंट, चाइल्ड, सब चाइल्ड एंड अगेन ग्रैंड चाइल्ड, लाइक लीव्स हम उसको बोल देते हैं, ओके। तो डोम रिप्रेजेंट एंटायर यूआई होता है। सो डोम इज रिप्रेजेंट ट्री डेटा स्ट्रक्चर, मैंने बताया ट्री की फॉर्म में होता है वो। वी कैन इजीली अपडेट द कंटेंट इन द डोम विद जावास्क्रिप्ट। जैसे आपको अपने एक आपकी एक लाइक डिव है, आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, लाइक आपको उसका टेक्स्ट चेंज आप इजीली चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो हाउ, लाइक कोई डोम की एलिमेंट है उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं? गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जो हमने जावास्क्रिप्ट में हमको प्रोवाइड किए हुए हैं फंक्शंस, ओके। तो जैसे हमने एलिमेंट गेट कर लिया और उसकी इनर वैल्यू पे लाइक अपडेट वैल्यू कर दिया हमने सपोज। तो जैसे हम अपडेट वैल्यू करते हैं तो कैसे परफॉर्म होती है वो? तो पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेट करेंगे एलिमेंट, ओके। तो हमको रिएक्ट क्या, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, हमको एलिमेंट गेट करके देगी। और फिर क्या करेगा ना, जैसे मैंने लिखा द ब्राउजर पार्स द एचटीएमएल टू फाइंड द डोम नोड, ओके। इट रिमूव द चाइल्ड एलिमेंट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट। जैसे हमने गेट किया तो वो क्या करेगा ना, जो लाइक एक डिव है उसके अंदर पैराग्राफ्स है, ओके, तो उसके जो चाइल्ड है ना उसको डिलीट कर देगा वो। और फिर क्या करेगा, हमने अपडेट कर देगा डोम एलिमेंट विद द न्यू वैल्यू, फिर अपडेट कर देगा जैसे हम न्यू वैल्यू आई है हमारी। और फिर क्या करेगा ना, रिकैलकुलेट होगी सी एस एस, मे बी ऐसे हो सकता है ना, सी एस एस में कुछ चेंजेस हो, फिर लेआउट चेंज होगा, और फाइनली अपडेट द यू आई इन द ब्राउजर। सो एक वैल्यू अपडेट करने के लिए हमको ना 6-7 स्टेप्स फॉलो होते हैं, जो एक्चुअल जो एच टी एम एल और ब्राउजर जो भी ये परफॉर्म करते हैं सभी, ओके। ये तो ठीक है, स्मॉल के लिए तो ठीक है, बट अगर लार्ज एप्लीकेशन हो जिसमें 1000 रिकॉर्ड्स हो, लाइक एलिमेंट्स हो इन द यूआई, अगर आपको उसको अपडेट करना पड़ जाए ना, तो ये बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशंस होते हैं, ओके। तो लाइक पहले क्या करो, गेट करो, डिलीट करो, एंड देन डोम में एलिमेंट वैल्यू चेंज होगी, देन रिकैलकुलेट सी एस एस, देन अपडेट होएगा यू आई, एंड देन अपडेट होगा ब्राउजर पे एक्चुअल यू आई पे। तो ये बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशंस होते हैं। सो तो अब क्या किया है, वर्चुअल डोम। सो रिएक्ट क्या लेके आया ना, वर्चुअल डोम कंसेप्ट लेके आया। सो वर्चुअल डोम क्या है, एक्चुअल एक लाइट वेट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है विच इज कॉपी ऑफ रियल डोम। सो कैसे क्या इन्होंने, रियल डोम है, ओके, उसका क्या एक कॉपी बना के अपने पास रख लिया, ओके। तो वो क्या करते हैं ना, अपडेटिंग वर्चुअल डोम इज रिएक्ट इज फास्टर बिकॉज, तो वो क्या करते हैं, जैसे आपने कुछ चेंजेस किए, एक कंपोनेंट है, ओके, कंपोनेंट में जैसे आपने कोई एक डिम में कुछ चेंज किया, टेक्स्ट चेंज किया, तो क्या करेगा, जो उसका एक्चुअल डोम हो तो क्या करता है, वो दो डोम अपने पास रखता है, वर्चुअल डोम उसका एक सब डोम। तो वो क्या कर, प्रीवियस डोम और एक्चुअल वर्चुअल डोम के कंपैरिजन करेगा, अगर उसमें कुछ चेंजेस मिलते हैं तो तब वो एक्चुअल रियल डोम में चेंज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो रिएक्ट के पास ना बहुत एफिशिएंट डिफ एल्गोरिदम है, एक डिफ एल्गोरिदम है जिससे वो डिफरेंस चेक करता है कि प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यू में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो फिर क्या, और वो क्या करता है, बैच अपडेट ऑपरेशन करता है। बैचेस में लाइक आपके पास 10 ऑपरेशन, लाइक 10 चेंजेस हमको करने हैं, तो 10 चेंजेस वो बैच में करेगा, ओके। एंड देन एफिशिएंट अपडेट ऑफ सब ट्री, और एफिशिएंटली वो सब ट्री को अपडेट करता है। लाइक ये उनके पास ना, लाइक अभी तो बहुत फास्ट हो गई है चीज़ें, उन्होंने अपने एल्गोरिथम्स में चेंजेस कर दिए हैं, और डिफरेंस बड़े अच्छे से चेक करते हैं, लाइक उन्होंने इतने पावरफुल एल्गोरिथम्स अपने लिखे हुए। व्हेन वी कॉल सेट स्टेट और अपडेट स्टेट कंपोनेंट री रेंडर, ओके। तो कंपोनेंट रिएक्ट क्रिएट्स द, अभी ये देखते हैं फंक्शनल, रिएक्ट क्रिएट्स द होल वर्चुअल डोम फ्रॉम स्क्रैच। रिएक्ट मेंटेन 2 वर्चुअल डोम, जो मैंने आपको बताया था, वन विद द अपडेटेड स्टेट वैल्यू एंड द अदर विद द प्रीवियस जो वर्चुअल उसने रखा हुआ था। रिएक्ट डिफ एल्गोरिदम, जो डिफरेंस उनका डिफ एल्गोरिदम उससे कंपेयर करेगा बोथ द वर्चुअल डोम टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू अपडेट द रियल डोम। मिनिमम कितने उसको चेंजेस लगेंगे एक्चुअल लाइक रियल डोम में अपडेट करने के। अगर गाइस ये मैंने ट्राई किया अपनी साइड से आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आपके पास लाइक आप, मैंने ये रेफरेंस दे दिया, आप यहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो, okay? So these are the question which I noted down, but मैं और question like whenever I get the time, तो मैं और question इसमें नोट डाउन कर लेता हूँ, अभी नोट डाउन कर लूँगा, फिर पार्ट 2 पे मैं नेक्स्ट वीडियो पे मैं और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, ओके। सो पहले मैं रिएक्ट का ले रहा हूँ, फिर जावास्क्रिप्ट के लूँगा, ऐसे मैं क्वेश्चन ट्राई करूँगा कवर करने का बहुत सारे इंटरव्यू
क्वेश्चन, ये अभी बिगिनर लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, देन फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन कवर करने की ट्राई करेंगे। गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो, आप कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए, बिकॉज इससे क्या होगा, यूट्यूब के एल्गोरिदम्स क्या करेगा, प्रमोट करेगा। अगर आप कमेंट लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो मेरी वीडियो को प्रमोट करेगा एंड उससे दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी ये वीडियो सेम जाएगी, मे बी इट विल हेल्प देम। ओके, तो मेरा फाइनली जॉब यही है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं शेयर करूं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, क्योंकि वेब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलता। ओके, तो मेरा टारगेट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँ तुम आप लोगों को। या दैट्स इट फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैं मोर क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। अनुज सिंगला साइनिंग ऑफ।